Yeah, hello students. I am Junaid Alam, your zoology teacher, and this would be our first lecture. So, in this lecture, first I will be telling you about the syllabus, that how we are going to deal with syllabus of class 11th. Then we will be starting our first chapter, and what are the different component of our first chapter, right? So, zoology, as the term implies, it is simply the study of animal, that branch of biology which deal with the study of animal, that would be zoology. As we know that in NEET exam, biology comprise about 50% of syllabus. In biology, you will be having two teachers. I will be dealing with zoology part and other teacher would be dealing with botany part. Whatever we are going to learn in class 11 and 12th, we have a brief description or brief idea of these chapter in our lower classes, that is class 9 and class 10. So, syllabus of class 11 and 12, it would be elaboration of what we have learned in your lower classes. The first chapter which we are going to discuss today or which we will start, it would be from structural organization in animal. In this chapter, we will learn that how different structures are organized in human body. See, you are going to be future doctors, and in order to learn medical biology, physiology plays a very important role. And to learn human physiology, we should be having a very clear concept about animal tissues. Say what kind of tissues are present in what kind of organ in our body. After learning animal tissues, we will be moving to biomolecules and then later on human physiology. So, we will be starting our syllabus with the chapter structural organization in animal. I will split this chapter into two different parts. The first part of chapter, it would be dealing with different type of tissues, their function and location in human body. We will be learning these things in detail, and these things would help us to learn human physiology in a very easy way. Second part of chapter would be morphology and anatomy of certain animal. In morphology and anatomy part, in our textbook, in our NCERT, there are three different animals which they have dealt with. First, there is earthworm, second, there is cockroach, and third, last but not the least, there would be frog. We will be starting our syllabus with animal tissue part, and later on when we will be completing class 11, we will be learning about earthworm, cockroach and frog. So, first chapter which we will be dealing with would be structural organization, and which part, that would be animal tissues. After completing that animal tissues part, you guys would be learning something new, that is biochemistry, and biomolecule part of biochemistry would be taught by me, and we will be dealing that in zoology syllabus. So, biomolecules would be including all the polysaccharides, proteins, amino acid, DNA, RNA, last but not the least enzyme. In order to learn the functioning of physiological organ, we need to learn at least basic concept of biochemistry. And the third unit that would be human physiology, and in class 11 there are total of 7 chapters of human physiology. We will be starting from digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation. Then we will be learning about excretive product and their elimination, locomotion and movement, and two very interesting chapters, neural control and coordination and chemical coordination and irrigation. That would be the part of physiology which we are dealing in class 11, and some part like human reproduction, that would be dealt in class 12. After completing this part, the next unit which we will be learning, it would be our animal kingdom, or I will say diversity of animals. And again we will be ending our session, our syllabus with the study of earthworm, frog and cockroach. Earthworm, cockroach and frog. So, this is a brief introduction what we are going to learn in zoology part of our class 11th. So, there would be 4 or 5 major units, and they would be having about 12 chapters. So, now I am going to start the first chapter of our syllabus, and that first chapter would be structural organization in animal, and in that structural organization we are going to learn about animal tissues. Now, tissue is something which we are learning from our basic classes. I mean to say from class 5 or 6 we start learning what is a tissue, and when somebody asks you what is a tissue, the simplest answer is a group of cell.
but every group of cell is not a tissue. If you are taking one cell from your digestive system, other cell from your lungs, some cell of your brain, some cell of your muscle, and group of these cells never make a tissue. Later on some more modern definition comes that a group of tissue, group of cell which are performing the similar function, that group of cell is referred as a tissue. I would like to make a correction that every tissue does not make or does not play the same function. If you talk about blood, blood is a connective tissue, but there are different type of cell in blood. You might be having macrophages, you might be having plasma cell, you might be having let us say eosinophils, and they are performing different function. So, first I will be giving you an idea about the definition of tissue as per our textbook, and then we will be making a clear conceptual definition that those group of cell which are having similar origin and they might be performing same or different function, that is referred as a tissue. So, I am going to start with the definition of tissue here. A group of cell along with their intercellular material, this intercellular term is important. Inter refers to between or cellular means to two cell. Intercellular material performing a specific function. So, same word यूज ना करके अगर हम स्पेसिफिक फंक्शन यूज करें तो टिश्यू का डेफिनेशन ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है. So, it is like this that you are having a group of cell here, and that group of cell, for example, this is one cell here, that is other cell, and this is group of cell, and whatever space is between these cells, this is what we call intercellular material, and this group of cell along with this intercellular material we call that tissue. The very basic and first definition of tissue. I guess it makes sense. So, group of cell which are performing a very specific function along with intercellular material we call that tissue, and this is what is mentioned in our textbook. Moreover, if we go little bit advanced, these group of cell might be performing same function or they might be performing different function. This group of cell structurally could be similar or different. For example, I told you about blood, na? So, structure of RBC is different, structure of white blood cell is different, structure of platelet is different. Similarly, in epithelial tissue there are certain cells which are flat, certain cells which are tall, certain cells which are cube like, and so on. So, structurally a cell could be different, functionally a cell could be different, but their origin is always same. So, next statement, that structure and function of a tissue might be dissimilar, क्या similar है? You will remember, but they always have a common origin, तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे डिज़ाइन होता है कि टिश्यू के अंदर क्या चीज़ अलग हो सकती है और क्या चीज़ हमेशा सेम रहेगा, तो आप आंसर याद रखिए कॉमन ऑरिजिन. इस ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? सी, लाइफ स्टार्ट होता है हर एक इंडिविजुअल का फ्रॉम ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विच वी कॉल जाइगोट. जाइगोट डिवाइड करना शुरू करता है, 2 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, देन आपका मॉड्यूला बनेगा, ब्लास्टोलाइट, सो ऑन, द स्टोरी वुड बी गोइंग लाइक दिस. व्हेन आई टेल यू अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर होते हैं. जब गैस्ट्रोलर स्टेज आता है डेवलपमेंट में तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, और एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल, जितने भी टिश्यू, जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे ही उन जर्मिनल लेयर से बने हैं. तो आप एज ए होल अगर मेरे बॉडी को देखेंगे तो कंप्लीट बॉडी कहाँ से बना है? जर्मिनल लेयर से. तो कॉमन ऑरिजिन का मतलब ये हुआ कि अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं या कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं या नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं, उनका जो सेल का ऑरिजिन होगा वो एक जैसी ही जर्मिनल लेयर से होगा. फॉर एग्जांपल, कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है तो कनेक्टिव टिश्यू की हर एक सेल, ग्रुप ऑफ सेल वो मेसोडर्मल ही होंगी. नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल है तो हर एक सेल एक्टोडर्मल ही होंगे. एपिथेलियल टिश्यू एम्ब्रियो में सबसे पहले बनता है और तीनों जर्मिनल लेयर से बनता है. तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा कि तीनों जर्मिनल लेयर से वो ऑरिजिन हो रहा होगा. तो जब हम ऑरिजिन की बात करते हैं, ऑरिजिन का मतलब होता है कि वो टिश्यू किस जर्मिनल लेयर से बना है. तो टिश्यू का स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है,
फंक्शन भी अलग हो सकता है, स्पेसिफिक होगा पर वो डिफर कर सकता है, लेकिन वो हमेशा सेम ओरिजिन से आते हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, अक्सर जो बच्चा गलती करता है वो करता है इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेस को समझने में। जब हम वर्ड यूज़ करेंगे इंट्रासेलुलर, तो जो इंट्रा वर्ड होता है उसका मतलब होता है विद इन द सेल। इस सेल के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो इंट्रासेलुलर है। और जब हम इंटर वर्ड यूज़ करते हैं तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू सेल। जब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, हम इंट्रासेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मटेरियल को नहीं कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल को। एनीवेज, एक छोटा सा कंसेप्ट अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यू। वी ऑल नो that broadly human body consists of 4 type of tissue. This is what we have learned in class 9th. तो I am just giving you an idea that type of tissue, जो सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर टिश्यू बनेगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियल नाम ही वहाँ से आया है कि ये टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। सेकेंड जो टिश्यू हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वी नो दैट वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मसल, और उसमें कंप्लीट करके मस्कुलर टिश्यू। देन सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो टिश्यू होगा हमारे बॉडी में दैट वुड बी कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट इज न्यूरल टिश्यू। आपका जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो सारा का सारा कहाँ से होगा बच्चे? न्यूरल टिश्यू से होगा। तो 4 मेजर टाइप के टिश्यूज़ हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इनका ओरिजिन मेंशन कर दूँ कि भाई कौन सा टिश्यू किस जर्मिनल लेयर से ओरिजिन होता है, तो आप याद रख के चलेंगे एपिथेलियल टिश्यू अकेला ऐसा टिश्यू होता है जो तीनों जर्मिनल लेयर से होगा। इट वुड बी एक्टोडर्मल, इट वुड बी मेसोडर्मल एंड इट वुड बी एंडोडर्मल। अभी जब हम एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करना शुरू करेंगे तो मैं ये भी स्पेसिफाई कर दूंगा कि कौन सा पार्ट एक्टोडर्मल होता है, कौन सा पार्ट मेसोडर्मल और कौन सा पार्ट एंडोडर्मल होता है। कमिंग ऑन मस्कुलर टिश्यू, मेजॉरिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू विद फ्यू एक्सेप्शन इज मेसोडर्मल। तो जब मस्कुलर टिश्यू को पढ़ना शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मसल्स होते हैं जो मेसोडर्मल के अलावा किसी और जर्मिनल लेयर से बनते हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल लाइक द मसल्स ऑफ योर आइज, मसल्स ऑफ योर स्किन, रेक्टल पिलाई मसल, ये हम उस वाले पार्ट में कवर करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू भी आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और जो लास्ट टिश्यू होगा दैट वुड बी योर न्यूरल टिश्यू एंड दैट इज योर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो पिछले स्लाइड में, पिछले डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू होता है उसका ओरिजिन सेम होता है। हियर आई एम गोइंग टू टीच यू कि कौन सा टिश्यू किस जर्मिनल लेयर से आया। तो एक्टोडर्मल इज न्यूरल टिश्यू, मेसोडर्मल वुड बी मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू अकेला ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्मिनल लेयर से होगा। एक थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इनके फंक्शंस वगैरह क्या होंगे। वैसे तो जब हम 2, 3, 4 लेक्चर हर टिश्यू के पढ़ेंगे तो हमें उनके फंक्शन फिंगर टिप पर आ जाएंगे, पर ब्रीफली अगर मैं बताऊं, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है, एक तो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना लेते हैं तो सिक्रेशन का काम करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू आपका प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू आपका एब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। मस्कुलर टिश्यू आपका काम करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। कनेक्टिव टिश्यू का मेजर काम होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एज वेल एज सपोर्ट ऑफ योर बॉडी। व्हेन आई टॉक अबाउट माय बोन्स, व्हेन आई टॉक अबाउट माय कार्टिलेज, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू है। और जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन न्यूरल टिश्यू। तो ये बेसिक सा एक क्लासिफिकेशन हो गया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। अब हम शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसके अंदर हमारा सिलेबस होगा एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो पहले हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या लोकेशन है और कहाँ कहाँ पर उनका क्या फंक्शन होता है, राइट। बिफोर स्टार्टिंग एपिथेलियल टिश्यू लेट मी गिव वेरी ब्रीफ कंसेप्ट और ब्रीफ आइडिया अबाउट सम हिस्ट्री कि भाई टिश्यू वगैरह में किस किस साइंटिस्ट का क्या रोल था। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज रेफर्ड एज टू हिस्टोलॉजी। तो आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा हिस्टोपैथोलॉजी। अगर आपको कोई भी टिश्यू में डिफेक्ट है और जब उसका हम बायोप्सी देके, उसका सैंपल देके उसको चेक करा रहे होते हैं तो उसको बायोप्सी कह देते हैं लिविंग टिश्यू के लिए, या हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। मेनली जो टर्म टिश्यू कॉइन किया था इट वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर बिशेट। टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर बिशेट। एनिमल टिश्यूज के लिए बिशेट साहब ने पहले टर्म यूज किया था, और प्लांट एनाटॉमी में सेम टर्म यूज किया था डॉक्टर नेथन ग्रीव ने। तो अगर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होता है कि प्लांट एनाटॉमी में टिश्यू टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो आपका आंसर होगा नेथन ग्रीव। और एनिमल के अंदर एनिमल हिस्टोलॉजी में सबसे पहले टर्म किसने यूज किया था, आंसर वुड बी बिशेट। बिशेट को ही हम कंसिडर करते हैं एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज रेफर्ड एज टू फादर ऑफ हिस्टोलॉजी,
Answer would be Dr. Bichette. And who coined the term histology? Answer would be Dr. Bichette. Who coined the term tissue? Answer would be Dr. Bichette. And who is father of histology? Answer would be Dr. Bichette. अभी I told you कि हिस्टोलॉजी टर्म कॉइन किसने किया था? तो डॉक्टर मेयर ने हिस्टोलॉजी टर्म कॉइन किया था. तो कंफ्यूजन दूर करते हैं. ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर मेयर. Bichette coined the term tissue. He is referred as to father of histology. And term tissue was used by N. Grew or Nathan Grew in context of plant anatomy. In context of plant anatomy, उन्होंने ये टर्म यूज किया था. बाद में थोड़ा सा जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो एक नाम और आप पढ़ते हो, द नेम इज मार्सेलो मैल्फिजी. और मार्सेलो मैल्फिजी का भी क्या है? डॉक्टर मार्सेलो मैल्फिजी. उन्होंने स्टडी ऑफ टिश्यू के लिए अलग ब्रांच ऑफ साइंस को डील किया था, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. तो जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसके फाउंडर कौन है? आप आंसर कर दें मार्सेलो मैल्फिजी. जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन वगैरह तो नहीं पूछे जाते हैं, पर हम इसको इसलिए डील कर रहे हैं कि जब हम फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे और हम एनकाउंटर होते हैं विद द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, तो हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि बिशेट साहब ने क्या किया था, मेयर साहब का क्या रोल था, ग्रीव साहब का क्या रोल था और मार्सेलो मैल्फिजी का क्या रोल था. एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एपिथेलियल वर्ड है, टर्म एपिथेलियम है, वो किसने कॉइन किया था. टर्म एपिथेलियम कॉइन किया था बेटा डॉक्टर रुइश ने. और रुइश साहब के हिसाब से एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कोई टिश्यू होगा. एंड लेट मी टेल यू दैट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. तो रुइश ने जो वर्ड एपी है, एपी का मतलब होता है अपॉन और वर्ड थीलियम का मतलब होता है टू ग्रो. तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो ग्रो करते हैं किसी और टिश्यू के ऊपर. कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. दिस इज द फर्स्ट विच इज फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है. पहले भी डिस्कस कर लिया हमने. ये तीनों जर्मिनल लेयर से, इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री जर्मिनल लेयर. कुछ पार्ट एपिथेलियम का आपका एक्टोडर्मल होगा, कुछ पार्ट एपिथेलियम का आपका मेसोडर्मल होगा, कुछ पार्ट एपिथेलियम का आपका एंडोडर्मल होगा. एक बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ, कहाँ पर वो एक्टोडर्मल होता है, कहाँ पर वो मेसोडर्मल होता है और कहाँ पे वो एंडोडर्मल होता है. देखो हम ये पढ़ के आते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आउटलाइन ऑफ माय बॉडी और जितने भी होलो ऑर्गन हैं उनकी लाइनिंग में होगा. होलो ऑर्गन का मतलब हुआ, अगर मैं अपना एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ तो उसकी लाइनिंग में क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू. मैं अपनी स्किन की बात कर रहा हूँ, उसकी लाइनिंग में क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो दूसरे के ऊपर ग्रो करता है और जनरली आउटर सरफेस ऑफ बॉडी और होलो ऑर्गन लाइक यूर इंटेस्टाइन, स्टमक को कवर करता रहेगा. जब भी हम बात करते हैं ऐसे एपिथेलियल टिश्यू की जो आपके आउटर सरफेस ऑफ बॉडी को कवर करता है तो वो एक्टोडर्मल होता है. आई यूज्ड टू रिमेंबर कि जो एक्टोडर्मल वाले ऑर्गन है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है. कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ स्किन कुड बी अट्रैक्टिव. सो एक्टोडर्मल कौन सा पार्ट, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर लाइक योर स्किन. जब भी एपिथेलियल टिश्यू किसी बॉडी फ्लूइड को कवर कर रहा होगा, चाहे वो आपके ब्लड वेसल में है, चाहे लिम्फेटिक वेसल में है, चाहे वो हार्ट में है, वो एंडोडर्मल, वो आपका एंडोडर्मल इन नेचर होगा. सो एंडोडर्मल, लेट मी टेल यू, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कर रहा है. इट इज द वन विच हैज बीन कवरिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. बॉडी के अंदर कौन सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप बता देंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मेसोडर्मल की बात करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू जो सिलोमिक कैविटी को कवर करता है. सिलोम आपका बॉडी कैविटी जो मेसोडर्मली लाइन है, आपके जितने भी विसरल ऑर्गन है वो सब सिलोम के अंदर है. तो जो भी सिलोमिक एपिथेलियम को कवर करेगा दैट इज मेसोडर्मल. इट इज द वन व्हिच इज कवरिंग द सिलोमिक एपिथेलियम. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले बनता है. सेकेंड स्टेटमेंट, तीनों जर्मिनल लेयर से बनता है. कुछ पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का एक्टोडर्मल होता है, कुछ पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का मेसोडर्मल होगा और कुछ पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का एंडोडर्मल होगा. जो भी चीज़ अट्रैक्टिव इन नेचर है वो जनरली एक्टोडर्मल होती है. तो एपिथेलियल टिश्यू जो भी सुपरफिशियली लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल ऑन योर स्किन, वो आपका एक्टोडर्मल होगा. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है. तो जो भी आपका स्टमक है, इसोफेगस है,
आपका इफ़ आई से इंटेस्टाइन, वो सारा का सारा कैसा होगा, एंडोडर्मल। और जो बॉडी कैविटीज़ हैं वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो सीलोमिक एपिथेलियम में जब बात करेंगे डेट वुड बी योर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करता है ओवर अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, और इस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को बोलते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि दिस इज अ बाइलेयर्ड नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, देयर इज अ टिश्यू जो इसके नीचे है एंड देयर इज अदर टिश्यू जो उसके ऊपर है। जो ऊपर वाला टिश्यू है दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, और जो नीचे वाला टिश्यू दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिक कंसेप्ट तो यही आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ओवर कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ये जो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर आप किसी फ्लोर पे खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे जो फ्लोर है और उसके नीचे भी एक फ्लोर है, तो उसके लिए हम बेसमेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, फर्स्ट थिंग उसके अंदर कोई सेल वगैरह नहीं होता, वो केमिकल का बना होता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होता है, दिस इज लेयर नंबर 1 और दिस इज लेयर नंबर 2। बेसिक कंसेप्ट, जो सेकेंड लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट करता है और जो फर्स्ट लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है। जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम होता है बेसल लैमिना। तो एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल है वो कहाँ पर रेस्ट करेंगी, आपका आंसर होना चाहिए बेसल लैमिना पर। और जो सेकेंड लेयर है उसका नाम होता है फिब्रस लैमिना और रेटिकुलर लैमिना। तो जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की सेल है वो सिक्रेट करती हैं फिब्रस लैमिना और रेटिकुलर लैमिना, और जो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू की सेल है वो सिक्रेट करती हैं आपका बेसल लैमिना। नाउ लेट मी टेल यू कि भाई आपके पास बेसल लैमिना काहे का बना होता है और रेटिकुलर लैमिना काहे का बना होता है। जो बेसल लैमिना है अभी आपने पढ़ा कि वो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है, उसके अंदर होते हैं बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ पॉलीसेकेराइड। वो जो पॉलीसेकेराइड है उसके अंदर म्यूकस भी होता है तो उनको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कह देते हैं। तो पहला लेयर जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल बना रही हैं वो होता है बेसल लैमिना, और लैमिना वर्ड भी लेयर से आया है एंड दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और जो दूसरा लेयर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल बनाती है, उसको बोलते हैं फिब्रस लैमिना। फिब्रस लैमिना के अंदर फिब्रस प्रोटीन होती हैं, ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चरली लाइक ए फाइबर होती हैं। और आप दो फिब्रस प्रोटीन को याद रखेंगे, वन इज योर कोलेजन प्रोटीन जो व्हाइट फाइबर, कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल वर्ल्ड में। तो इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, फाइबर विच आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर। तो जब कभी मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा मैं आपको कोलेजन फाइबर्स के बारे में बताऊंगा, रेटिकुलर फाइबर के बारे में बताऊंगा कि कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट है, और जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो रेटिकुलन प्रोटीन के बने हैं और वो नेटवर्क बना लेते हैं। तो व्हाट यू लर्न, अगर हम एक बेसिक सा ऑर्गेनाइजेशन देखें, ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और कुछ सेल्स है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, एंड दीज सेल्स आर रेफर्ड एज टू एपिथेलियल सेल। तो एपी का मतलब अपॉन और थीलियम का मतलब टू ग्रो। एपिथेलियल टिश्यू की सेल वो है जो किसी और के ऊपर ग्रो करती है, और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो भी टिश्यू होगा दैट वुड बी योर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ बात आती है अ ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मटेरियल। जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, इन सेल्स के बीच में जो भी स्पेस होगा, जो भी ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो नेग्लिजिबल होता है। तो आपके पास जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इससे क्या समझ में आता है, अगेन लेट अस ड्रॉ द सेम थिंग हेयर कि आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास ये कुछ एपिथेलियल सेल, लेट से उन एपिथेलियल सेल को मैं थोड़ा क्यूबोइडल बना देता हूँ। तो जो भी नियर बाई सेल हैं ऐसा तो नहीं एक दूसरे के अंदर इंडल्ज हो रखी है, एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो रखी हैं, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर मटेरियल उनके बीच में होता है और इसको बोलते हैं वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। पर वो इतना कम है, ये स्पेस इतना कम है कि इससे कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी लिम्फ वेसल पास नहीं कर सकती। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर होता है, उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है। अगर आप मेरी स्किन को स्क्रैच कर देंगे तो उससे ब्लड निकल के बाहर नहीं आएगा,
और अगर स्क्रैच इतना डीप हो गया है कि एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो गया और कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो गया तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो व्हाट यू लर्न, एपिथेलियल टिश्यू इज avascular in nature, it is not vascularized। vascularized वर्ड यूज करते हैं जहां पे वसल सप्लाई होती है, ब्लड वेसल वगैरह जाती है। पूरा एपिथेलियल टिश्यू में कहीं भी ब्लड वेसल नहीं होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ वन एरिया, और वो एरिया होता है आपके इंटरनल ईयर में, कॉक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई में। जब आप इंटरनल ईयर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर स्ट्रिया वेस्कुलरिस है, और वो बॉडी का अकेला ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें ब्लड सप्लाई है, अदरवाइज कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो दैट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इट इज नॉट वेस्कुलराइज्ड एक्सेप्ट स्ट्रिया वेस्कुलरिस, और जो ये स्ट्रिया वेस्कुलरिस है दैट इज इन कॉक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर। ये एक्सेप्शन मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी किताब वगैरह को पढ़ रहे हैं, साइड बुक को, आप उसमें पढ़ लें कि भाई एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होता है, बिल्कुल ठीक है, पर एक ऐसा भी एपिथेलियल टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में जिसके अंदर ब्लड वेसल है, तो आपको ये चीज़ क्लिक कर जाए। फिर आती है पावर रीजनरेशन की। अगर आपके पास एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो जाता है, आप फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे थे या आप चल रहे थे और आपको थोड़े स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि आपका जो इंजरी वो हील होना शुरू हो जाता है, और जो हीलिंग है वो किसकी वजह से होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि जो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है वो एपिथेलियल टिश्यू में होता है, और जो लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है वो न्यूरल टिश्यू में होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज हैविंग अ वेरी गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, अ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। तो क्या क्या बेसिक पॉइंट आप पढ़ के आए हो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद मोर पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर दैट एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टर्म का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो दूसरों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले बनते हैं एम्ब्रियो के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू तीनों जेमिनल लेयर से बनते हैं। एपिथेलियल टर्म डॉक्टर रूइश ने दिया था। कुछ एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्मल है, और कुछ एपिथेलियल टिश्यू एंडोडर्मल है। नेक्स्ट अदर फीचर हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करते हैं एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पर, और जो ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, केमिकल का बना होता है। जो एपिथेलियम सिक्रेट करता है उस लेयर को बोलते हैं बेसल लैमिना, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट करता है उस लेयर को बोलते हैं फिब्रस लैमिना। जो फिब्रस लैमिना होता है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है या रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है, और जो बेसल लैमिना है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। आपके पास एपिथेलियल टिश्यू में तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है वो सारा का सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू एपिथेलियल टिश्यू जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक इलास्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, तो जो भी एपिथेलियल टिश्यू है वो एक इलास्टिक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मोर एवर इंटरसेलुलर स्पेस वेरी लिटिल। उसके बाद आई टोल्ड यू इट इज हैविंग ए वेरी गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। तो अभी आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं एपिथेलियल टिश्यू के, और अब आप ऑल सेट हैं इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा कि एपिथेलियल टिश्यू को हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया है कि भाई उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर है या वो मल्टीपल लेयर है। एपिथेलियल टिश्यू इट कुड बी लाइक दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन and there is only one layer of cell, case number 1. Case number 2, there is more than one layer of cell. तो पहले either it is unilaminated or it is multilaminated. Epithelial tissue has been broadly classified as simple epithelial tissue. Simple epithelium को आप याद रखेंगे it is unilaminated. जहाँ भी epithelial tissue की single layer of cell होती है attached to the basement membrane वो simple epithelium होता है। और second होगा आपके पास compound एपिथेलियल टिश्यू, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को आप याद रखेंगे इट इज मल्टी लैमिनेटेड। लैमिना वर्ड कहाँ से आया, लेयर से, मल्टी का मतलब हुआ मैनी, सो इट कुड बी यूनिलैमिनेटेड और इट कुड बी योर मल्टी लैमिनेटेड। देन इफ आई टेल यू अबाउट सिंपल एपिथेलियम, ओके, आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिंगल लेयर ऑफ सेल है। अब ये सिंगल ऑफ लेयर ऑफ सेल अपीयरेंस में कैसा है, ये देखने में आपको फ्लैट सेल भी लग सकते हैं, ये देखने में आपको क्यूब लाइक भी लग सकते हैं, ये देखने में आपको टॉल कॉलमनर लग सकते हैं,
और ये देखने में आपको मल्टी लेयर्ड भी लग सकते हैं। तो जो भी सुपरफिशियल लेयर है, हमने किया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरह की सेल्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टिश्यू हम पढ़ेंगे डेट वुड बी सूडो स्ट्रेटिफाइड। और बच्चों आप जानते हैं सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। तो देखने में ये टिश्यू मल्टी लेयर्ड लगेगा पर रियली ये टिश्यू सिंगल लेयर्ड होगा, इसलिए हमने सिंपल एपिथेलियम में क्लासीफाई किया है और इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड है। तो वन बाय वन इनके मॉडिफिकेशन भी पढ़ते चले जाएंगे कि भाई क्यूबोइडल के ऊपर सीलिया आ गया तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, माइक्रोविलाई आएगा तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ग्लैंड्स वगैरह आ गए तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे। कमिंग ऑन द मल्टी लैमिनेटेड, इन मल्टी लैमिनेटेड पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, एक ऐसा टिश्यू जो स्ट्रेचेबल होगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल वर्ड इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती। तो ट्रांजिशनल टिश्यू इट वुड बी फॉर दैट टिश्यू जो स्ट्रेचेबल है। एंड सेकेंड वन वुड बी स्ट्रेटिफाइड, मल्टी लेयर्ड। अब स्ट्रेटिफाइड के भी फर्दर क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा कि इनके अंदर स्क्वेमस है तो क्या कहेंगे, सुपरफिशियल लेयर में, कॉलमनर है तो कहाँ पर होगा, क्यूबोइडल है तो कहाँ पर होगा, फिर कैरेटिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो बेसिक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया आपका कि जो भी आपका टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू उसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लेयर या ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर अरेंजमेंट हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा, जिस तरह का सेल नजर आएगा वैसा हम नाम यूज करते चले जाएंगे। इट कुड बी स्केमियस, इट कुड बी क्यूबोइडियल, कॉलमनर एंड सेवरल मॉडिफिकेशन वुड बी देयर। एंड सिमिलरली कंपाउंड एपिथेलियम में हम पढ़ेंगे कि आइदर वो स्ट्रेचेबल होता है, अकेला एपिथेलियल टिश्यू जो स्ट्रेचेबल है वो ट्रांजिशनली होगा, और अगर वो स्ट्रेटिफाइड हो गया तो उसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट योर एनिमल टिश्यू एंड वी आर ऑल सेट टू स्टडी अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। So this is all for this lecture. In this next lecture, first we will be starting about certain specialization of plasma membrane. शुरू करने से पहले I will make a very clear concept कि माइक्रोविलाई क्या होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होते हैं, ताकि एपिथेलियल टिश्यू में अगर कहीं मैं माइक्रोविलाई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहीं सीलिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या स्टीरियोसीलिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम्हारा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है कि ये चीज़ क्या है। And then one by one we will be learning about these tissues, their structure, their modification, their location and their function, and that thing would be on our fingertip. और बाद में हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को आपस में हेल्ड करते हैं, उनको सेलुलर जंक्शंस कहते हैं, और सेलुलर जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही नहीं होते, वो बाकी टिश्यूज में भी होते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।